Madam Sudhiti Jindal is a writer herself. She has written a novel titled Grow Up Moon, published by Snap Publications in 2012. She is also an editor of Law Teller magazine, and she's also blogging on a particular site. She, by profession, has her own academy known as the Learning Curve Academy at Nayagaon, which is about 2 kilometers from the main city, Chandigarh. Is a part of Chandigarh, I would say. Nayagaon में इनका एक अपनी academy है, the Learning Curve Academy, which is doing an excellent job in terms of developing soft skills and communication skills among the students at various levels, right from the school going to the university students, even the corporate houses, their managers, uh, they are taking training in this academy. And she is also a visiting faculty to our institute on our in our programs, a very regular faculty with us. And she's also visiting faculty to NIFT Mohali, Punjab University Chandigarh, and many other organization corporate houses. She has done her postgraduate diploma in international business operations in 2001. She is basically a graduate in economics from Punjab University. She has held a number of I would say honors. She was awarded the Hindi by the Hindi Academy in Delhi, and during her schooling and in her college times, she was editor of the college and school magazine. She has been a head girl in the school, and she has also got A level certificate in NCC in her student life, and she has been a regular contributor to the college magazines when she was in the college. This is all about Madam Smriti Jindal. I want to share with you. The list is very long though, because I want her to kindly engage the session and enlighten our students on resume writing. Good morning everybody. I hope I'm audible. और मैं जैसे पिछले सेशन का फीडबैक रहा था, मैं ध्यान रखूंगी और मैं ज़्यादातर हिंदी में बोलूंगी. And I would also keep my pace slow. Today I'm here to discuss with you resume writing. And I believe most of you are still students not looking for jobs or campus placement. आप लोग अभी immediately in another couple of months या फिर कुछ महीनों बाद जॉब की तरफ नहीं देख रहे क्योंकि अभी आपकी पढ़ाई चल रही है. तो इस स्टेज पे आप लोग ज़रूर क्वेश्चन कर रहे होंगे कि क्यों आपको रिज्यूमे राइटिंग सिखाया जा रहा है, क्या ये रेलेवेंट है भी कि नहीं. तो जैसे हम ये सेशन प्रोग्रेस करेगा वी विल कम टू नो व्हाई रिज्यूमे राइटिंग इज रेलेवेंट फॉर यू और वो अभी से ही क्यों आपको बताया जा रहा है. इस सेशन में मैं आपके साथ 2-3 चीज़ें डिस्कस करना चाहती हूँ. फर्स्ट लेट मी आस्क यू, सबसे पहले मुझे आपसे ये क्वेश्चन पूछना है कि क्या आप लोगों को लगता है बायोडेटा, सीवी और रिज्यूमे में कोई डिफरेंस है कि नहीं. क्या ये तीनों टर्म्स हम इंटरचेंजेबली एक दूसरे की जगह पे बिना सोचे समझे यूज़ कर सकते हैं कि नहीं. आर यू श्योर ऑफ दैट? आई वांट टू नो. ओके. सेकेंड थिंग दैट आई वांट टू नो फ्रॉम यू, और जो या फिर दूसरी चीज़ जो मैं चाहती हूँ कि आप जिसका ध्यान रखें जब आप ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, वो ये है कि वंस यू कंप्लीट योर एजुकेशन, जब आपकी एजुकेशन टेक्निकल एजुकेशन ख़त्म हो जाती है, आप एक फिनिश प्रोडक्ट हैं. एज अ कैंडिडेट आप एक तैयार किया हुआ प्रोडक्ट हैं जो कि जॉब मार्केट में उतरने वाले हैं. एंड जॉब मार्केट में बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं और वो कंज्यूमर्स हैं कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस जो आपको जॉब देंगी. अब आपने अपना एक एडवर्टीजमेंट बनाना है जिससे कि जो वो कंज्यूमर्स हैं वो दूसरे ऐसे आपके जैसे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बजाय ओवर दोज प्रोडक्ट्स दे पिक यू. सो दिस इज हाउ यू गेट सिलेक्टेड फॉर अ जॉब. इस माइंडसेट को, इस थिंकिंग को अपने दिमाग में रख के यदि आप if you go through the entire selection procedure, पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर के थ्रू आप निकलते हैं. शुरू होता है रिज्यूमे राइटिंग से, फिर ग्रुप डिस्कशन के लिए अपियर होना, फिर पर्सनल इंटरव्यू के लिए अपियर होना. अगर आप ये थिंकिंग पीछे रखेंगे कि एक कंज्यूमर बैठा है मेरे सामने
जो ये सोच रहा है कि क्या मैं उसके लिए उतने फ़ायदेमंद हूँ या नहीं, क्या मैं उसकी पूरी जो उसकी ज़रूरतें हैं उनको पूरी कर सकता हूँ कि नहीं, कैन आई फिट द बिल फॉर द कंज्यूमर, देन यू विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर। तब आप बेटर परफॉर्मेंस दे पाएंगे रेज्यूमे में, जीडी में और पीआर। ओके, अब ये इन दोनों बातों का ध्यान रखते हुए लेट्स बिगिन विद द सेशन। I want to show you what I want to cover in today's session. Details of the session are, I am going to bring out that there is a difference between a biodata, a CV and a resume. ये तीनों terms आप interchangeably नहीं use कर सकते, इनमें बहुत difference है and इनके use से ही पता चलता है कि आपको कितनी knowledge है, कि आप कितने केयरफुल हैं अपने बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने को लेकर। यदि आप अपने लिए केयरफुल नहीं है तो क्या आप किसी और के लिए, किसी और कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, विल यू बी केयरफुल इनफ विद देम, या फिर आपका वहाँ पे तब भी एटीट्यूड कैजुअल ही रहेगा। इन छोटी छोटी बारीकियों से जो आप कहते हैं, लाइक सर जस्ट पॉइंटेड आउट, सिंगला सर जस्ट पॉइंटेड आउट, अभी पिछले सेशन में पॉइंट आउट किया था कि कंटेंट पे ध्यान देना चाहिए। कंटेंट इन एनी स्पीच और एनी कम्युनिकेशन आर द वर्ड्स। आप जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं उसको आपको बहुत ध्यान से यूज करना है। हर एक वर्ड का आपको मीनिंग पता होना चाहिए इससे पहले कि आप उसको अपने आप आंखें बंद करके अपना लें। ओके, सो आई वांट टू क्लैरिफाई द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री टर्म्स। दूसरे मैं आपको बताऊंगी कि रिज्यूमे क्या है, क्यों वो आप लोगों के लिए रेलेवेंट है, क्यों आपको बायोडेटा या सीवी नहीं बनाना चाहिए, कौन से टाइप का रिज्यूमे बनाना चाहिए, या थ्री टाइप्स ऑफ रिज्यूमेस, कौन से टाइप का रिज्यूमे बनाना चाहिए, और आपके साथ एक सैम्पल रिज्यूमे डिस्कस करूंगी जिससे जो आपकी डाउट्स हैं कि कैसे हमें अपना रिज्यूमे बनाना है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाए। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। नाउ बायोडेटा, this term can be expanded into biographical data. बायोडेटा को मैं एक्सपैंड करके बोल सकती हूँ बायोग्राफिकल डेटा। अब बायोग्राफिकल वर्ड में दो छोटे छोटे हिस्से हैं, टू स्मॉलर पार्ट्स इन दिस बिगर वर्ड, बायो एंड ग्राफिकल। बायो मीन्स और बायोग्राफ मीन्स, बायो मीन्स इसेंशियली, बायो का मतलब है ऐसे डिटेल्स जो आपकी बॉडी या फिजियोलॉजी से कंसर्न है। सो इसके अंदर ये ऐसा डॉक्यूमेंट है आपके बारे में जिसके अंदर ना ही आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, आपके जॉब प्रोफाइल्स वगैरह की डिटेल्स इंक्लूडेड होंगे, पर आपकी बायोलॉजी से रिलेटेड डिटेल्स इंक्लूडेड होंगे, जैसे एज, सेक्स, हाइट, वेट। फिर आपकी बॉडी के अंदर जो आपका माइंड है उससे रिलेटेड डिटेल्स भी इंक्लूडेड होंगे, नेशनैलिटी, चॉइसेस ऑफ रिलीजन, why is there a change in academic career, which stream of study have you taken up, which is the course that you've taken up. So biodata, जब मैं बोल रही हूँ कि ये सब डिटेल्स होंगे तो इसका मतलब मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गई कि बहुत बड़ा होने वाला है, जो जितना डिटेल डॉक्यूमेंट होगा वो उतना बड़ा होगा साइज। यस, एंड लेट्स नाउ मूव ऑन टू ग्राफिकल, द अदर पार्ट ऑफ दिस वर्ड। ग्राफ का मतलब होता है ऐसा स्केल जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होता है, एक ऐसी पिक्टोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो पीरियड ऑफ टाइम इन्वॉल्व करती है। अब पीरियड ऑफ टाइम होने के लिए क्या है, एक्सपीरियंस होना जरूरी है। yes, so once I have to make a biodata for myself, I just cannot make it like this. मैं ऐसे ही नहीं बना सकती कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें कुछ भी बना दिया, खिचड़ी सी पका के, थोड़ा सा रिज्यूमे, थोड़ा सा सीवी, अपना एज, हाइट, वेट, सेक्स के थोड़ा सा डिटेल डाल दिया, डिस्टिंग्विशिंग मार्क्स डाल दिए, देयर इज अ मोल ऑन माय लेफ्ट हैंड, और ऐसे ऐसे करके ये मेरा बायोडेटा बन गया। नो सॉरी, वो ना तो बायोडेटा है, ना सीवी है, ना रिज्यूमे है, क्योंकि वो किसी भी पर्पस को सर्व नहीं कर रहा है। बायोडेटा आप तभी बना सकते हैं जब आपके पास कम से कम 10 साल का, 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है। और कई बार बायोडेटा उसको भी कहते हैं, उस डॉक्यूमेंट को जो एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन सीख करने वाला, या क्वेश्चन है जिसके थ्रू आपके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन सीख करी जाती है ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के द्वारा, उसे हम बायोडेटा भी कहते हैं। उसके अंदर आपके पास ऐसे टाइप क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल, कई स्टूडेंट्स who are applying for admissions to foreign universities, they have to answer questions like, why do you want to study with us, why have you opted for this course, please justify how your previous qualifications are relevant for further education in this course, why have you singled out this academic institution only, why should this academic institution pick you up,
Why do you hold dual nationality? Which is the religion that you follow? Why do you follow that religion? ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. अब ये आप ये सोचेंगे कि इसके पीछे मतलब क्या है. स्टूडेंट्स से ऐसे क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है कि आप अगर किसी outside your own country, you are going to some academic institution, for them also you are a new product, for them also you are a new person, new individual. वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे किसी भी एलिमेंट को नहीं डालना चाहते हैं जिसकी वजह से द एकेडमिक एटमॉस्फेयर गेट्स पोल्यूटेड और परवर्टेड. जैसे हमने देखा है रीसेंट अटैक्स ऑन इंडियंस इन ऑस्ट्रेलिया, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होती है. वहाँ के लोग दे आर नॉट एक्सेप्टिंग इंडियंस देयर इन द एकेडमिक इंस्टीट्यूशन. ऐसी सिचुएशन ना खड़ी हो जाए किसी इमिग्रेंट की वजह से, किसी आउटसाइड स्टूडेंट की वजह से, ऑफशोर स्टूडेंट की वजह से जो वहाँ पे पढ़ने आया है. अपने लोग तो कर रहे हैं उनका तो दे कैन स्टिल कंट्रोल, बट somebody who's from outside the country and trying to do that, it is difficult to control and manage such a situation. इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ऐसे डिटेल्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिससे दे कैन डेल्व इनटू योर पर्सनालिटी. आपकी पर्सनालिटी के अंदर, आपकी साइकी के अंदर झांक सके और सोच सके, समझ सके कि क्या वो सोच है जो आपको कोई भी एक्शन लेने पे प्रेरित करती है. What is it that stimulates you or brings you into action to take a certain step? Okay, ये students का case हो गया. But otherwise, a biodata is actually required when you are applying for jobs at very high level in government organizations or in private organizations, or even if you are an academic scholar, research scholar, then also you have to give out such detailed information about you, because the organization or the company wants to know what all are you capable of. There will be huge, उस high level post पे आपके अंडर बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, आपकी पोस्ट के साथ बहुत सारी फाइनेंशियल रिसोर्सेज अटैच्ड होंगी, तो आपके डिसीजन की वजह से वो लोग और वो रिसोर्सेज इधर उधर एलोकेट होंगी. सो द कंपनी और द ऑर्गेनाइजेशन या फिर वो गवर्नमेंट ये इंश्योर करना चाहती है कि कहीं आप ऐसा डिसीजन ना ले लें जो आपको सही लगता है पर जिस वजह से वेस्टेज हो रहा है रिसोर्सेज का, या जिस वजह से नुकसान हो रहा है रिसोर्सेज को भी और दूसरे लोगों को भी या दूसरी फील्ड्स को भी जो उस डिसीजन से अफेक्टेड है. इसलिए तब उस केस में हम बायोडेटा लेते हैं, इतना डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सनालिटी ऑफ द पर्सन. Otherwise, in India and even in the Southeast Asian region, biodata is usually used for matrimonial purposes, because उसके अंदर भी हमें we are building up a relationship wherein we want to know more about the person rather than just this educational qualification or professional experience. That is why a biodata is required. But this is an archaic term used only in South Asian region for CV and resume. ये हमारी तरफ से एक मिस नॉर्मल है, हमारी तरफ से एक मिस यूज है वर्ड का कि कुछ भी जिसमें आपके प्रोफेशनल या एकेडमिक डिटेल्स दिए हुए और आप जॉब सीख करने के लिए वो डॉक्यूमेंट पकड़ा देते हैं उसको भैया बायोडेटा कहते हैं. ये गलत है. तो अब आपको पता चल गया है कि ना तो आपका इतना एक्सपीरियंस है, ना आप इस स्टेज पे इतनी हाई लेवल पोस्ट में एब्जॉर्ब होने वाले हैं, सो ना ही आप रिसर्च स्कॉलर है, या फिर अगर आप रिसर्च स्कॉलर बनते हैं आफ्टर योर पीएचडी और परस्यूइंग योर पीएचडी, देन ओनली कैन यू सबमिट अ बायोडेटा एंड देन यू विल हैव टू आंसर दीस काइंड ऑफ डिटेल्ड क्वेश्चंस. सो अदरवाइज फॉर फ्रेशर्स सीकिंग जॉब्स, बायोडेटा इज टोटली आउट ऑफ द क्वेश्चन. उनके लिए ये बनाना या ये सबमिट करना फॉर प्लेसमेंट एट द टाइम ऑफ कंपनीज प्लेसमेंट इज नॉट possible. So could you please show the entire slide for biodata? In this slide आपको दिखेंगे pointers जो मैंने biodata के बारे में अभी आपके साथ discuss किए. These are the main points. If you note them, you will be able to distinguish. आपको पता चल जाएगा कि ये biodata क्या है और ये किस तरह से CV और resume से different है. Okay? Let's move on to CV, जो हम दूसरा document submit करते हैं या लेके जाते हैं जब we are seeking a job. Okay, now CV stands for curriculum vitae. It is a Latin word. Latin भाषा का शब्द है जिसको मैं expand करूंगी तो curriculum vitae बनता है. Curriculum जैसे जो आपके syllabus वगैरह follow किया जाता है उससे related वो ही same word है, पर इसको हम curriculum कहेंगे. Again, syllabus that has to be followed over a period of time. Again, the strength or the skills and education and experience accumulated over a period of time. Vitae means life and curriculum means course of life. So over a period of time जो आपके पास skills आए हैं, experience आए हैं, education आए हैं, उसको आप CV में reflect करेंगे.
ये एक दो स्किल या एक दो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में बात नहीं करता है, ये सब के बारे में बात करता है इन अ वेरी जनरल वे। सो फ्रेशर्स जो कि अपने कैंपस के थ्रू, अपने इंस्टीट्यूशन के थ्रू जॉब नहीं सीख कर रहे हैं, बट आर सीकिंग इंडिपेंडेंट जॉब्स, और इंडिपेंडेंटली दे आर सीकिंग जॉब्स आउटसाइड देयर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, कैन मेक अ सीवी जिसके अंदर जो जो उन्होंने किया हुआ है वो सब डिटेल्स में। And curriculum vitae for experienced people should be made once they have a working experience of at least 5 to 6 years. Curriculum vitae थोड़ा सा impressive looking document होता है, वो A4 size sheet के 3-4 पेजेस से या उससे ज़्यादा हो सकता है, जो कि 8 या 9 पेजेस ऑफ बायोडेटा से कम है। सो वी नो बायोडेटा इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट जिसके अंदर 80% पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। करिकुलम वीटे उससे कम कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है जो 3-4 पेजेस का होता है, जिसके अंदर 60% पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। ओके, इसके अंदर सिर्फ जनरल टैलेंट्स की बात करी जाती है कि क्या स्पेसिफिकली, अच्छा मुझे ड्राइविंग आती है, मुझे कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग आती है, आई एम अ गुड कम्युनिकेटर ऑल्सो because I was the PR official for a firm earlier. Then I am a good organizer also क्योंकि मैंने अपनी पिछली जॉब में काफ़ी इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए विद अ लॉट ऑफ सक्सेस। ये सब आपके बारे में पता है, पर इनमें से आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल क्या है वो तो नहीं पता चल रहा। और अगर सपोज आप एक कॉपी राइटर की जॉब के लिए, कॉपी राइटर वो होता है जो कि एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में एड्स लिखता है, उनके वर्ड्स लिखता है, आप कॉपीराइटर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इनमें से कौन सा स्किल है जो सबसे रेलेवेंट है? सब कुछ बता के तो फायदा नहीं। यस, सो ये पर्पस सीवी नहीं फुलफिल। सीवी एक ऐसा जनरल डॉक्यूमेंट है जिसमें आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है कि जिस हिसाब से जैसे एजुकेशन गेन की गई है, जैसे जॉब एक्सपीरियंस एक्यूमुलेट किया गया है, उसी टाइप से उसी ईयर फॉर्मेट में बिगनिंग विद द फर्स्ट कमिंग डाउन टू द मोस्ट रीसेंट, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, इसके अंदर आपका फोकस होता है आपकी जॉब्स पे, आपके एक्सपीरियंस पे ज़्यादा फोकस होता है। वहाँ पे आपके की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज क्या थे, KRA का जो मैंने स्लाइड में लिखी है उसका मतलब है की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज, क्या क्या काम कर रहे थे जो आपको करने थे, आपके अलावा कोई और नहीं करता, तो आपके कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज हो गए। उसके अलावा आपने ये काम करते हुए क्या क्या स्किल्स गेन किए। For example, suppose you were a copywriter in an advertising agency. So you can say key responsibility areas were to write down print advertisements to be published in national and international dailies of the country, to write down content for the website of the company, to write down circulars and intra organization communication to be circulated within various branches of the company, तो सारा राइटिंग से रिलेटेड है। बिसाइड्स दैट ऑल्सो हैंडलिंग कम्युनिकेशन इन क्लाइंट सर्विसिंग, तो इसका मतलब क्लाइंट्स के साथ जो कम्युनिकेशन थी, रिटन कम्युनिकेशन, वो भी आप हैंडल करते थे। क्लाइंट्स के साथ बात करने का तरीका लहजा कुछ और है, उसके अंदर आपके इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छे होने चाहिए, आपके टैक्टिक्स अच्छे होने चाहिए, आपका ऐसा तरीका होना चाहिए बात करने का कि क्लाइंट्स आपसे, जो पुराने क्लाइंट्स हैं वो आपसे जुड़े रहे और नए क्लाइंट्स आपके साथ जुड़ जाएं। तो ये एक और स्किल हाईलाइट हो गया बिसाइड्स राइटिंग थ्रू योर डिस्क्रिप्शन इन अ सीवी। अब ऐसा तो आप, अगर आप जनरलाइज डॉक्यूमेंट दे देंगे और सब लोग कैंपस प्लेसमेंट सीख कर रहे हैं, जो आपके साथ पढ़ रहे हैं बच्चे, तो फिर आप और दूसरों में कोई भेदभाव नहीं हो सकता, कुछ डिफरेंस नहीं नज़र आएगा। तो एज अ कंपनी और एज अ कंज्यूमर जिसके सामने एक जैसे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, वो तो आंख बंद करके कोई भी उठा ले, फिर तो एक बहुत बड़ी लॉटरी होगी कि आपको उठाया जाएगा कि नहीं उठाया जाएगा, क्या आपको जॉब मिलेगी कि नहीं। पर मैं ये लॉटरी ख़त्म कर सकती, I, as a candidate appearing for the interview in campus placement, I can stop this lottery by writing a resume. And resume बहुत इसी वजह से सबसे relevant document है जब आपका जॉब फेस्ट होता है इंस्टीट्यूशन में, या जब आप कैंपस प्लेसमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तब आप resume बनाएं। Okay, let's come down to resume. What a resume is and what are the types of resume. Now resume is a French word जिसका मतलब है summary. समरी, जैसे ही मैंने वर्ड सुना समरी, समरी मतलब संक्षिप्त में, छोटे में, जिस्ट दे देना। तो मैंने अब अपने इतने सारे सीवी के डिटेल्स छोटे करके एक पेज पे लिखा, क्योंकि एक रेज्यूमे में सिर्फ A4 शीट साइज्ड पेपर का
सिर्फ एक साइड पे ही डिटेल्स दिए जाए, दैट इज कॉल्ड अ रिज्यूमे। आई डू नॉट यूज अ सेकेंड शीट। अगर अनफोर्सिन सर्कमस्टांस हो, मेरे हाथ से बाहर जा रही है सिचुएशन, इतनी इन्फॉर्मेशन है कि मैं उसे नहीं छोटा करके लिख सकती एक शीट एक साइड पे, तो मैं दूसरी शीट ले लूंगी, पर उसमें भी 1/4 ऑफ दैट नेक्स्ट शीट, उससे ज़्यादा मैं रिज्यूमे नहीं लिखूंगी। पर मैं आपको तब भी कह रही हूँ, अगर आपने दूसरी शीट अटैच की है वो आपके लिए डिसएडवांटेजेस हो, क्योंकि आप इसे ऐसे देखिए कि कैंपस प्लेसमेंट के लिए कोई कंपनी आ रही है, इट इज़ गिवन अ स्टैक ऑफ रिज्यूमेस, उसके पास एक बहुत बड़ा स्टैक दे दिया जाता है कि ये वही सारे बच्चे हैं जिनको आपको GDPI के लिए बुलाना पड़ेगा और ये उनके डिटेल्स है रिज्यूमे में। और मैं HR पर्सन हूँ, मैं एक एक करके शीट देख लूँ। क्या आपको लगता है अगर 100 से ऊपर रिज्यूमेज है और मेरे पास टाइम है, टाइम ज़्यादा है, तब भी क्या मेरी इतनी मंशा होगी, वुड आई हैव द इंटेंशन एट दैट टाइम टू रीड एवरी रिज्यूमे, डिटेल में पढूं और उसके बाद अच्छा हाँ रिज्यूमे से तो ये अच्छा लगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब मुझे अपने सामने इतना सारा काम दिख रहा है, मैं चाहूंगी जल्दी से जल्दी खत्म करूं, क्योंकि मुझे पता है कि जो इतनी सारे लोगों में से पोस्ट तो सिर्फ 4 या 5 है, उसमें से हमें मिल ही जाएगा। एंड क्योंकि इस टाइम पे कैंपस प्लेसमेंट के टाइम पे हम लोग इंडक्शन, वी डू नॉट कंडक्ट इंडक्शन एट टॉप लेवल मैनेजमेंट की, जिसके लिए हम बहुत बारीकी से बहुत डिटेल से पूरा प्रोसीजर कंडक्ट करें। दिस इज एट द लोएस्ट रंग ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट का लोएस्ट स्टेज होगा या फिर लो लेवल मैनेजमेंट का हाईएस्ट स्टेज होगा, उस स्टेज पे आपको जॉब मिलेगी। तो उस जॉब के लिए इतनी बारीकी से कोई मेहनत नहीं। एंड जब मैं इतने सारे पेपर्स के थ्रू देख रही हूँ, गोइंग थ्रू सो मेनी पेपर्स, मेरे पास एक थोड़ा ज़्यादा रिज्यूमे आ जाता है बड़ा, एक शीट से ज़्यादा, अरे भैया ये तो थोड़ा बड़ा है, देखने में ठीक ही लग रहा है, इसको साइड में रखते हैं बाद में देखते हैं। और जब मैंने पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर दिया, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी, मेरे पास उतने बच्चे आ गए जिनको मुझे लगता है 1 या 2 दिन में भैया हम इतने ही निपटा सकते हैं, इससे ज़्यादा इंटरव्यू नहीं निपटा सकते या GDPI नहीं निपटा सकते, चलो जो रह गए रहने। सो दैट इज़ वाई वी आर टेलिंग यू कि आपने एक शीट से ज़्यादा रिज्यूमे नहीं बनाना है, चाहे आपकी क्वालिफिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हों, पर तब भी वो एक्स्ट्रा शीट आपके अगेंस्ट काम कर सकते। ओके, एंड दैट इज़ वाई यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द समरी, द जिस्ट। ओके, इट हाईलाइट्स ओनली स्पेसिफिक स्किल्स। अगर आप स्लाइड पे देखेंगे, हमने थर्ड पॉइंट लिखा है हाईलाइट ओनली स्पेसिफिक स्किल्स। अब मैं स्पेसिफिक स्किल्स कैसे पता करूँगी? और उसी वजह से प्लीज़ स्टूडेंट्स ये ध्यान दीजिए कि आज आपको बताया जा रहा है, चाहे आपने 1 साल 1.5 साल या 2 साल बाद इंटरव्यू के लिए, जॉब इंटरव्यू के लिए अपियर होना है, आपने ये स्पेसिफिक स्किल्स पता करने के लिए ही आपको इतना टाइम दिया जाए। आपको अपनी रिसर्च एंड एनालिसिस कंडक्ट करनी है। कौन सी कंपनीज हैं, अपनी TPO से पूछिए जो आ सकती हैं हमारा इंटरव्यू लेने के लिए। पिछले सालों में हमारे इंस्टीट्यूट से कौन कौन से बच्चों को जॉब मिली है, कौन कौन सी कंपनीज में से। उन बच्चों को जिनको जॉब मिली है, क्या उनके मार्क्स बहुत अच्छे थे, क्या उनका ट्रेड में मशीन के ऊपर काम बहुत अच्छा था, क्या उनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे थे, क्या उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी, क्या वो बहुत अच्छे कपड़े पहन के वेल ग्रूम थे, क्या उनको इंग्लिश बहुत अच्छी आती थी, क्या था उनमें जो दूसरों को छोड़ के उनको कंपनी लेके गई। ये सब बातें पता करने के लिए, इन सब की डिफरेंट कंपनीज के लिए ये लिस्ट बनाने के लिए आपको टाइम चाहिए। एंड ये आप कर सकते हैं अपने TPO से पूछ के, पुराने स्टूडेंट्स से जिनका इंडक्शन हो चुका है, जिनको जॉब मिल चुकी है, उनसे बात करके कि क्या रहा PI, आपको क्या लगता है किस बेसिस पे आपको जॉब मिली। एंड उन कंपनीज की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं आप, वहाँ जाइए, वहाँ देखिए कंपनी ने जो भी अपने बारे में वो चाहती है कि सबको पता हो, वो उसने अपनी वेबसाइट पे डाला। सारे लिंक्स खोल के देखिए, स्पेशली अगर वो लिंक है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ के बारे में कुछ, वर्क इन्वायरमेंट के बारे में कुछ लिखा जाता है, वहाँ पढ़िए। वो स्पेशली वहाँ पे वो लिखा जाएगा जो वो कंपनी एक्सपेक्ट करती है अपने एम्प्लॉयज़ से, वो चीज़ें आपको अपने उसमें रिफ्लेक्ट करनी आनी चाहिए। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत ज़्यादा CSR पे स्ट्रेस करी है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब पैसा कमाने के साथ साथ वो सोसाइटी की बेहतरी के लिए भी कुछ काम करिए, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, वो रिलायंस फाउंडेशन के थ्रू उत्तराखंड में, गुजरात में, अभी JNK में कितना काम कर रहे हैं फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ पीपल हु बीन अपरूटेड बाय नेचुरल कैलामिटीज, जहाँ पे पानी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, उसके लिए वो फंड्स एलोकेट करे, चैरिटी का काम कर रहे हैं। तो उनके लिए अगर कोई कैंडिडेट बिसाइड्स द टेक्निकल एजुकेशन किसी NGO में काम कर चुका है, तो वो उनके लिए बहुत, या NSS का पार्ट रह चुका है, वो उनके लिए बहुत अच्छा या एक्साइटिंग कैंडिडेट होगा, वो चाहेंगे कि वो उसे अपने पास रखें। ऐसी चीज़ें के लिए रिसर्च एंड एनालिसिस करने के लिए आपको अभी टाइम मिल रहा है, तभी आपको अभी रिज्यूमे बनाना
बताया जा रहा है। तो आपको ये स्किल्स निकालने पड़ेंगे अपने अंदर। अगर आपके पास अब टाइम है, अगर आपने लिस्ट बनाई हर कंपनी के हिसाब से कि इस कंपनी के इस जॉब प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू होगा और इसके लिए ये 5 टॉप स्किल्स चाहिए, इनमें से भैया एक भी नहीं है मेरे पास। अगर आप जॉब चाहते हैं, आपके पास टाइम है, अपने आप को ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कीजिए कि आफ्टर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, ये स्किल्स आपके कैंडिडेचर में दिखाए जा सकें आपके द्वारा। ओके, एंड यू विल मेंशन ओनली दो स्किल्स जिनके लिए आपके पास सर्टिफिकेट है, कोई एविडेंस है। आप अपनी तरफ से आके क्लेम कर दें, हाँ भाई मैं तो एक एनजीओ के साथ काम कर रहा था, कोई भी एनजीओ का नाम लेती हूँ। अच्छा, आप कह रहे हैं और मैं मान लूँ एज अ कंपनी? show me show me an experience certificate, show me a certificate। उनके लेटर हेड पे लेटर लिखा हुआ हो कि हाँ ये पर्सन हमारे साथ पिछले 6 महीने से इस महीने से इस महीने तक काम कर रहा था, उसने या कर रही थी, उसने ये प्रोजेक्ट्स में हमारा मदद करी। ये एविडेंस है, ये स्किल्स है जो आप मेंशन करेंगे। अपनी तरफ से assumptions, अपनी तरफ से कुछ भी क्लेम वहाँ पे डाल दीजिए जिसके लिए कोई प्रूफ नहीं है आपके पास, तो एज अ कंपनी, एज एन एम्प्लॉयर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा वो आपके अगेंस्ट काम करेगा, मैं सोचूंगी शायद ये डिसऑनेस्ट है, शायद ये मुझसे झूठ बोल रहा है। ठीक है, सो ऐसे करके आपने स्किल्स डालने हैं रिज्यूम में। एंड द फोर्थ पॉइंट दैट इज रिटन ऑन द स्लाइड इज कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू द जॉब प्रोफाइल। जॉब प्रोफाइल मैंने आपको बताया ना, कंपनीज की लिस्ट बना लीजिए, हर एक कंपनी के हिसाब से आपके पास 5 टॉप स्किल्स आ जाएंगे। रिलायंस के लिए कुछ और है, किसी और के लिए कोई और स्किल होगा, जहाँ पे आपने फ्लोर पे या शॉप पे काम, फॉर एग्जाम्पल सोनालिका ट्रैक्टर्स है और एज कम्पेयर टू दैट रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स है, उसके लिए मैंने बता दिया रिलायंस के लिए क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, सोनालिका ट्रैक्टर्स के लिए क्या हो सकता है। अब वो चाहेंगे कि आप शॉप फ्लोर पे काम करें। उनकी जो कंपनी की एक ब्रांच है, एक होशियारपुर में है, एक साउथ में चेन्नई से आगे जाके। ओके, अब उनके लिए ये होगा कि आप यू हैव गुड फिजिकल स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना। तो वो आप कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे? थ्रू योर पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी, थ्रू योर पार्टिसिपेशन और बीइंग एन एनसीसी कैडेट। इससे आपका फिजिकल स्ट्रेंथ और स्टैमिना दिखेगा। इसमें आपके इस जॉब के लिए आपको इंटरपर्सनल स्किल्स, लोगों से बातचीत करना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आप खुद जो मशीन पे काम करना इतनी गर्मी में बिना अपनी भूख प्यास का ध्यान दिए हुए, वो आपके स्किल्स हाईलाइट होने चाहिए। एक्सक्यूज मी। और ये मैं आपको बता पा रही हूँ क्यों? क्योंकि मैंने रिसर्च करी हुई है। मुझे पता है सोनालिका ट्रैक्टर्स का एक होशियारपुर में है ब्रांच, एक चेन्नई के आगे है, क्योंकि मैं पढ़ कर आई हूँ, क्योंकि मैं उनके वेबसाइट पे जाके रिसर्च कर कर आई हूँ। अगर सोनालिका ट्रैक्टर्स के इंटरव्यू के दौरान मुझसे पूछा जाता है आर यू रेडी टू रीलोकेट, क्या आप रीलोकेट करने के लिए तैयार हैं, कहीं क्या आप कहीं और जाके रहने के लिए तैयार हैं, तो अगर मुझे पता है कि हाँ ये तो सिर्फ 2 ही जगह की बात कर सकते हैं और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, चाहे साउथ में भी भेज दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, देन आई से यस। बट एज अ पर्सन मेरे को लगता है कि साउथ में भेज दिया, वहाँ पे खाऊंगी पीऊंगी क्या सारे टाइम सांभर चावल, कहाँ पे गांव में जाके इनकी एक कंपनी का ब्रांच है, वहाँ पे मेरे को कुछ भी नहीं मिलेगा, ना लोग देखने को मिलेंगे अपनी भाषा बोलने वाले, ना कोई और होगा, ना फैमिली होगी, छुट्टी भी बड़ी मुश्किल से मिलेगी क्योंकि मैं न्यू इंडक्टी होंगी। तो मैं उस टाइम बोल सकती हूँ नो। Or else I can say yes, I am ready to work in one of your branches, especially the one in Hoshiarpur। ऐसे इंटेलिजेंट आंसर्स मैं दे सकती हूँ rather than saying वो तो डिपेंड करता है जॉब कहाँ मिलेगी, वो तो आप बताएंगे कि कहाँ जाना होगा, फिर मैं बताऊंगी। ये बहुत गलत है। दिस शोज अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, दिस ऑल्सो शोज अ लैक ऑफ इंटरेस्ट। आपकी तरफ से इंटरेस्ट की कमी दिखती है कि आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं पर आपने हमारे बारे में जानने की कोशिश नहीं की। इस चीज़ से एक और बात निकल कर आई है कि आप अपने रिज्यूमे से अपने पर्सनल इंटरव्यू के क्वेश्चंस कंट्रोल कर सकते। पूछेगा इंटरव्यूअर पर क्वेश्चन आपने डाले होंगे उनके मुंह में। दैट इज हाउ पावरफुल अ रिज्यूमे इज। तो उसको बनाने के लिए, उसको लिखने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और हमें पता है कि बड़ी बड़ी किताबें लिखना, लंबे लंबे आंसर्स लिखना बहुत आसान है, पर ब्रीफ में अपनी बात कह जाना बिना कुछ छोड़े और एकदम इम्पैक्टफुल होना बहुत मुश्किल है, इसलिए इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ओके, आई सेड कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू द जॉब प्रोफाइल। तो मैं जितने नंबर ऑफ जॉब्स के लिए अप्लाई करी हूँ उतने नंबर ऑफ रिज्यूमेज हो सकते हैं। अगर मैं रिलायंस के लिए अप्लाई करी तो ये वाला रिज्यूमे, अगर क्योंकि उसके अंदर मेरे इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छे आने चाहिए, मेरा एनएसएस में या एनजीओ के साथ इन्वॉल्वमेंट आना चाहिए, इसलिए वो मैं ऊपर लिखूंगी, वो वहाँ होना चाहिए।
पर सोनालिका ट्रैक्टर्स को इंटरपर्सनल स्किल्स और एनजीओ के साथ काम करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उनके लिए मैं ये ऊपर नीचे कर देती हूँ। अपने फिजिकल स्ट्रेंथ स्टैमिना दिखाने वाले पार्टिसिपेशन इन एनसीसी, बास्केटबॉल प्लेयर या ऐसे कोच वाले स्किल्स में हाईलाइट कर देती हूँ, वो ऊपर रख देती हूँ। तो ये थोड़ा फेरबदल करके मेरा रिज्यूमे डिफरेंट है सारी कंपनीज के लिए और सभी जॉब प्रोफाइल्स में। ओके, दिस इज व्हाट अ रिज्यूमे इज, एंड होपफुली अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे बायोडेटा, सीवी और रिज्यूमे एक दूसरे से डिफरेंट है। ओके, एंड नाउ लेट मी टॉक अबाउट द 3 टाइप्स ऑफ रिज्यूमे, और उन 3 टाइप्स में से कौन सा रिज्यूमे आपके लिए सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है। ओके, द फर्स्ट टाइप ऑफ रिज्यूमे इज अ फंक्शनल रिज्यूमे। इफ यू वुड लुक एट द स्लाइड, फंक्शनल रिज्यूमे का मतलब है जो फंक्शन आपने किए हैं उनसे जो स्किल्स आए हैं उनके बारे में बात। अब ये फंक्शन ज़रूरी नहीं है, ये काम ज़रूरी नहीं है आपने जॉब के दौरान ही किया, कि आप तो फ्रेशर्स हैं, अब आपके पास जॉब कहाँ है ना। तो ये फंक्शंस या ये एक्टिविटीज़ आप तब भी कर सकते हैं, ये काम आप तब भी कर सकते हैं जब आप एक स्टूडेंट हैं। अगर आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका नहीं मिला किसी जॉब में, इसका मतलब ये नहीं है आप में हुनर या स्किल की कमी है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपको उस कैनवस पे अपना हुनर दिखाने का मौका नहीं मिला, उस स्टेज पे अपना हुनर दिखाने का मौका नहीं मिला। आप ज़रूर बहुत अच्छे वक्ता होंगे, तो क्या हुआ अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी कंपनी के लिए उनके स्पोक्स पर्सन नहीं रहे। तो क्या हुआ अगर आप किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में पढ़ाया नहीं है आपने अभी तक, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ही नहीं है। वो तो मैं दिखा सकती हूँ कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं अगर आपने किसी डिबेट में, किसी डेक्लेमेशन में पार्टिसिपेट किया और वहाँ पे पार्टिसिपेट किया तब भी ठीक है, और अगर वहाँ पे अवार्ड्स जीते तो और भी अच्छा है। सो दैट इज हाउ स्किल्स आर हाईलाइटेड इन अ फंक्शनल रिज्यूमे। हाईलाइट्स द ट्रांसफरेबल स्किल, जो मैं आपको अभी बता रही थी कि मेरे जो डिबेट और डेक्लेमेशन में दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स डेवलप हुए हैं, वो मैं बोल सकती हूँ कि यही स्किल मैं यहाँ यूज़ कर सकती हूँ। मुझे खाना बनाना आता है, मैंने इंडियन खाना बनाया, मैंने इटालियन खाना नहीं बनाया, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं इटालियन खाना नहीं बना सकती। खाना बनाना आता है, आप मुझे रेसिपी दीजिए, मैं इटालियन खाना बना लूँगी। इट इज़ द सेम एज दैट। आपको यहाँ पे फंक्शनल रिज्यूमे में अपने ट्रांसफरेबल स्किल्स दिखाने हैं। Yes, I have these skills. I have an evidence for them because I have been on the organizing committee of so many events. तो मुझे पता है कि इवेंट कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर आपकी कंपनी के लिए मुझे ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे इवेंट, स्टाफ के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, या फिर आउट विद क्लाइंट इंटरेक्शन विद द क्लाइंट्स, आई विल बी केपेबल ऑफ डूइंग इट। मेरा स्टेज बदल जाएगा पर बेसिक काम तो सेम रहेगा। दैट इज हाउ यू डू। बट प्लीज रिमेंबर, आप वो ही स्किल्स क्लेम कर सकते हैं कि वो आपके कैंडिडेचर में है, आपकी पर्सनालिटी में है, अगर आपके पास उनके लिए एविडेंस है, आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, आपके पास कोई लेटर ऑफ अप्रिसिएशन है, किसी की तरफ से वर्क एक्सपीरियंस का लेटर है, जैसे कि आप एनजीओ के साथ काम कर रहे हैं, आपके पास उनका वर्क एक्सपीरियंस का लेटर है, यस, तब आप वो यूज कर सकते हैं एज एविडेंस। Then it is used, functional resume is used by freshers, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके अब तक बता रही हूँ कि आपके लेवल पे आप फंक्शनल रिज्यूमे, या फिर जब एक गैप हो एम्प्लॉय, सपोज कोई लेडी है who's working but then she has proceeded on maternity leave just because, क्योंकि वो माँ बनने वाली है तो उन्होंने एक maternity leave ले लिया। maternity leave कम से कम 6 महीने की होती है, कई बार 9 महीने, कभी 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 1.5 साल की होती है। इस वजह से वो काम से इतने टाइम के लिए दूर रही है, काम से दूर रही हैं, उन्हें नहीं पता लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है, लेटेस्ट मेथडोलॉजी क्या है, लेटेस्ट डिलीवरेबल्स क्या है, किस क्या उनसे एक्सपेक्टेशंस है अब मार्केट की, ये सब उन्हें नहीं पता है। फिर इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम नहीं कर सकती, उनकी नॉलेज है, उनकी स्किल है। उस केस में व्हेन देयर इज अ ब्रेक इन योर वर्क ड्यू टू सम रीजन, suppose you were teaching somewhere, then to improve your qualifications you decided to undergo for some further study, that is a break। तब आप दोबारा जब जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तब आप फंक्शनल रिज्यूमे बनाएंगे। ओके, दैट इज वेयर यू मेक अ फंक्शनल रिज्यूमे। लेट्स कम टू द सेकंड टाइप ऑफ अ रिज्यूमे, दैट इज क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे। अब रिज्यूमे की बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि अनलाइक अ बायोडेटा और अ सीवी, a resume is always in the reverse chronological order। रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब उल्टा शुरू हो,
जो सबसे पहले या मोस्ट रिसेंट है वो सबसे ऊपर आएगा, और जो उसके बाद पहले हुआ है वो वैसे आएगा। एंड आप 4 या 5 से ज़्यादा अपनी जॉब प्रोफाइल्स, 4 या 5 से ज़्यादा अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशंस या अपने स्किल्स एंड अवार्ड्स नहीं मेंशन करेंगे, क्योंकि रिज्यूमे को छोटा रखना है। तो वो 5 कौन से होंगे, वही रिसर्च एंड एनालिसिस से आपको पता चलेगा। जो स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड है आप वही 5 डालेंगे और रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डालेंगे। 2014 का पहले, फिर 2013, फिर 12 एंड सो ऑन एंड सो। ओके, इन अ क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे इट गिव्स अ कॉम्प्रिहेंसिव वर्क हिस्ट्री। आपकी कॉम्प्रिहेंसिव वर्क हिस्ट्री दी जाती है कि आपने कब काम शुरू किया, कैसे शुरू किया, और जब आपने कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन में, सपोज 2-3 सालों में बहुत सारी जगह पे काम किया है, एक ही इंडस्ट्री में डिफरेंट कंपनीज में डिफरेंट पोजीशन में काम किया है, तो आपकी स्किल्स डिफरेंट टाइप की होंगी। या फिर आपने एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में जंप किया है, जैसे कि आपने एविएशन इंडस्ट्री से एकेडमिक इंडस्ट्री में जंप किया है। सपोज आपने कॉर्पोरेट सेक्टर से एकेडमिक्स में जंप किया, सपोज आप एकेडमिक्स में थे, उसके बाद आप कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने के लिए जाते हैं। ऐसे काइंड के चेंजेस आप रिफ्लेक्ट करते हैं क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे में, जो कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है। इसके अंदर आपकी पोजीशन पहले बताई जाती है, जॉब प्रोफाइल, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पे आपने काम किया, और उसकी लेंथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कौन से मंथ से कौन से साल से लेकर कौन से मंथ तक कौन से साल तक काम किया। ये आप तभी बताएंगे जब देयर हैज बीन अ फ्लक्चुएशन, देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ चेंज। पर इसके केस में आपको केयरफुल ये होना पड़ेगा कि जब आप दिखाते हैं कि आपके रिज्यूमे में आपने यहाँ भी काम किया, यहाँ भी काम किया, यहाँ भी काम किया, ये तो पर्सन एक जॉब से दूसरे जॉब पे कूदता रहता है, जॉब हॉपर कहते हैं हम उसे। अगर ये जॉब हॉपर है, इसका मतलब वो इनकंसिस्टेंट है, वो एक जगह रह के खुश नहीं है, वो बहुत जल्दी बोर हो जाता है। क्या ये स्टेबल एम्प्लॉय रहेगा मेरी कंपनी के लिए कि नहीं, ये एक पॉइंट है जो एक एम्प्लॉयर के माइंड में आ जाता है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल मेकिंग अ क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे। लेट्स लुक एट द थर्ड टाइप, व्हिच इज अ हाइब्रिड रिज्यूमे। हाइब्रिड रिज्यूमे का इज लाइक बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। वो आपके स्किल्स के ऊपर भी हाईलाइट करता है और आपका वास्ट एक्सपीरियंस जो है इंडस्ट्री में उसको भी कंबाइन करके दिखाता है। तो इसके अंदर स्किल्स जबकि पहले प्लेस किए जाते हैं दैन जॉब एक्सपीरियंस, पर तब भी इक्वल फोकस होता है स्किल्स और एक्सपीरियंस, और जो आपके करियर की ग्रोथ है उसे दिखाई जाए। ओके, अब तीनों टाइप के रिज्यूमेस देख के उनका डिस्कस करके हमें ये पता चला है obviously that functional resume is the type of resume that you will be making as candidates or as freshers. Now I want to take up an example with you. Case study लेना चाहती हूँ जो हमने एक resume बनाया था अकेडमी ने एक कैंडिडेट के लिए, मैं उसके थ्रू आपको functional resume आप कैसे बनाएंगे वो बताना चाहती हूँ. Let's go. You will see on your screen. You will see the sample resume of Vivek Kamsar. Please note that there is a line going across the top of the page. शुरू में ही ऊपर कुछ डिटेल्स के बाद एक लाइन जा रही है, और अगर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हम देखेंगे कि नीचे भी एक लाइन है। सर स्क्रॉल कर सकते हैं नीचे, अगर लाइन सर लिटिल मोर, see there is another line at the bottom of the page. ये दो लाइंस इक्वल हिस्से हैं पेज के, 10% नीचे 10% ऊपर, ये कहलाते हैं हेडर और फुटर। हेडर जो ऊपर आया है और फुटर जो नीचे आया है। तो एक रिज्यूमे के 3 पार्ट्स, हेडर, इन बॉडी एंड फुटर। हेडर और फुटर 10% स्पेस होते हैं एक A4 साइज शीट की, और बाकी के जो 80% स्पेस है वो मेन बॉडी में आते हैं। ठीक है, रिज्यूमे के। अब हम हेडर में क्या लिखते हैं, आपने कभी भी अपने एडवर्टीजमेंट से पहले या किसी के भी एडवर्टीजमेंट से पहले ये देखा है एडवर्टीजमेंट और उसके बाद एडवर्टीजमेंट शुरू होता है? नहीं ना। उसी वजह से आपके रिज्यूमे में कभी भी टाइटल नहीं आएगा रिज्यूमे। मेरे को देख के पता चल जाएगा कि हाँ ये आपका रिज्यूमे है, आपका CV है कि आपका बायोडेटा है। इस एग्जाम्पल में जहाँ आपको सैम्पल रिज्यूमे दिख रहा है वो सिर्फ आपको बताने के लिए कि इस टाइप का एक रिज्यूमे हो सकता है, बट आपने वो लिखना नहीं है। सबसे पहले जब एडवर्टीजमेंट शुरू होता है तब क्या आता है, प्रोडक्ट का नाम, और मैंने बताया था जॉब मार्केट में नए प्रोडक्ट हैं आप, तो आपका नाम आना चाहिए। आप देखिए यहाँ पे विवेक कांसल लिखा है,
अब आपने फॉन्ट टाइप और फॉन्ट साइज का ध्यान रखना है। यू हैव टू यूज अ फॉर्मल फॉन्ट टाइप। आपने एक फॉर्मल फॉन्ट टाइप यूज करना है, जैसे कि न्यू टाइम्स रोमन या फिर एरियल, एरियल ब्लैक। कैजुअल या इनफॉर्मल फॉन्ट स्टाइल जैसे कि वर्दाना, न्यू कॉमिक सैंस सेरिफ, ये नहीं यूज करेंगे फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स के, ठीक है। और फॉन्ट साइज सिर्फ दो होंगे, एक जो बोल्डर प्रिंट के लिए, बड़े प्रिंट के लिए आप बड़ा साइज यूज करेंगे 12, 12.5 till 13, और फाइनल प्रिंट के लिए छोटा साइज यूज करेंगे उसी फॉन्ट टाइप का 10, 10.5, 11 का, ठीक है। यहाँ पर विवेक ने अपना नाम थोड़ा सा और हाईलाइट किया है, बस वो सिर्फ थर्ड फॉन्ट साइज उसने सिर्फ यहाँ पे यूज किया है, दिस इज प्रॉब्ली 14। आप भी अपने नाम के लिए थोड़ा सा बोल्ड या बड़ा फॉन्ट साइज यूज कर सकते हैं, पर उसके बाद ये वाला फॉन्ट साइज आप पूरे रिज्यूमे में कहीं और नहीं यूज करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि जैसे ऑब्जेक्टिव है या स्किल्स एंड अवार्ड है वो सेम फॉन्ट साइज, बाकी जो उनके नीचे टेक्स्ट आ रहा है वो छोटे फॉन्ट साइज है। तो बेसिकली देयर आर टू मेन फॉन्ट साइजेस ऑफ द सेम फॉन्ट स्टाइल इन द एंटायर रिज्यूमे। बीच में सबसे पहले हेडर में आपका नाम आएगा, लेफ्ट साइड पे मैंने जगह खाली छोड़ी, वो है फोटोग्राफ के लिए, आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के लिए। रिज्यूमे में कभी भी फोटोग्राफ अटैच्ड नहीं हो, पर अगर आप पर्सनल इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपके पास अपने रिज्यूमे की एक्स्ट्रा कॉपीज होनी चाहिए जिस पर आपने साइन नहीं किया हो। एक आपकी रिज्यूमे की कॉपी होगी जिस पे आपने सिग्नेचर्स करे होंगे, एंड साथ में अपने फोल्डर में आप अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स की कॉपीज लेके जाएंगे, 8 या कुछ इतनी, क्योंकि हो सकता है कंपनी चाहे कि वो आपके रिज्यूमे के साथ आपकी फोटोग्राफ भी अटैच करे। अब ये फोटोग्राफ कोई भी नॉर्मल फोटोग्राफ नहीं हो सकती, ये एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होगी। एंड अगर हो सकता है आपका इंडक्शन एमएनसी में हो जाए, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में हो जाए जिसकी ब्रांच इंडिया के बाहर हो, तो आपका पासपोर्ट अगर तैयार है तो वो वाली फोटोग्राफ, अगर रिसेंट है तो उसी की कॉपीज ले जाइए, या फिर अगर आपका पासपोर्ट तैयार नहीं है तो इसी फोटोग्राफ के बेसिस पे वो आपका पासपोर्ट भी बनवा देगी, वीजा वगैरह सब अरेंजमेंट्स करवा देगी। पर इस बार इस पूरे प्रोसेस में ये बात ध्यान रखनी है कि पासपोर्ट के लिए फोटोग्राफ इज ऑलवेज क्लिक्ड अगेंस्ट अ वाइट बैकग्राउंड। तो अगर आपका पासपोर्ट नहीं रेडी है और आप पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाएंगे, तो प्लीज़ ये ध्यान रखिए आपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एक वाइट बैकग्राउंड के अगेंस्ट ही खिंचवानी है, जिससे कि सेम ही फोटोग्राफ यूज हो आपके सभी डॉक्यूमेंट्स, आपकी जान पहचान के लिए, आपके पहचानने के लिए, फॉर योर आइडेंटिफिकेशन कोई प्रॉब्लम ना आए। दूसरी बात, आपके शोल्डर से अब आपका पोर्शन ऐसे दिखना चाहिए फोटोग्राफ में जैसे कि आप ऑफिस पे काम करने जाएंगे वैसे, ऐसे नहीं कि आप किसी शादी के फंक्शन से लौट रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूशन के फंक्शन से लौट रहे हैं, बहुत अच्छे से तैयार हैं, पर ऑफिस इतने तैयार होकर नहीं जाएंगे, पर तब भी आप अच्छे लग रहे हैं इसलिए आपने फोटो खींचा। दैट इज नॉट प्रोफेशनल। सो फोटोग्राफ के बारे में ये दो बातें बहुत ज़रूरी है ध्यान। नेक्स्ट ऑन द राइट साइड इफ यू विल सी कि हमने राइट में ना एक इमेजिनरी मार्जिन है अंदर की तरफ पेज में, वी हैव अलाइंड आवर टेक्स्ट अलोंग दैट मार्जिन। राइट साइड ऑफ द पेज की तरफ नहीं अलाइन किया है, वो आगे पीछे एंड कर रहा है। ऐसे ही आपने भी अपना टेक्स्ट अलाइन करना। और ये टेक्स्ट होगा क्या? आपका रेजिडेंशियल एड्रेस, फुल एड्रेस विद पिन कोड, परमानेंट एड्रेस नहीं। आप कहीं और रहते हैं, हॉस्टल या पीजी में रह के एजुकेशन ले रहे हैं, तो हॉस्टल का एड्रेस दो, पीजी का एड्रेस दो, जहाँ वेयर यू विल आंसर, यू विल टेक द मेल एंड यू विल आंसर द मेल, ओके। देयर शुड नॉट बी एनी पंक्चुएशन मार्क्स टुवर्ड्स द एंड, it should have the entire details of your contact address with pin code. Why am I specifying on pin code? जो ऑफिशियल मेल है वो ईमेल के अलावा ट्रेडिशनल मेल से भी भेजी जाती है, और ट्रेडिशनल मेल में स्पेसिफिकली रजिस्टर्ड और स्पीड पोस्ट मेल से भेजी जाती है। नाउ बोथ these type of mails require your pin code so that there is no loss of important mail, so that आप एक important job opportunity को से ना छूट जाए because you've not given your pin code. So please just find out the pin code of your area and put it there, okay. Below that you will put your phone number. Don't think that putting up a landline number gives a better impression. So I put up a landline number जो कि सारे टाइम में आंसर भी ना करूँ, जो कि सारे टाइम ज़्यादातर लोग आंसर ना करें. In today's day and age, I know everybody carries a personal mobile. अपना personal mobile रजिस्टर. अगर आप किसी वजह से उस टाइम पे कॉल नहीं पिक कर सकते, you can of course call them back and receive that information. Okay? And the third thing that you will have to give here is your email address. अब ये email address का भी बहुत बड़ा
इशू है। I have come to know that it is easier to exchange and receive documents on Gmail. Obviously, heavy documents और files Gmail पे आसानी से receive और dispatch करी जा सकती है, इसलिए हम लोग सब प्रेफर करते हैं Gmail पे अकाउंट हो जाए। तो उसके लिए हम अपने नाम के पीछे 123 बर्थ डेट 12 007 ऐसे ऐसे कुछ भी लगा देते हैं। इंजीनियर लगा दिया आगे, डॉक्टर लगा दिया आगे, कुछ भी लगा दिया। बट आई एम टेलिंग यू, यू कैन हैव सेपरेट ईमेल अकाउंट्स। पर्सनल मेल के लिए कुछ और ईमेल अकाउंट रखिए और प्रोफेशनल मेल के लिए कोई और ईमेल अकाउंट। ये आगे चल के आपको मेल सॉर्ट करने में बहुत मदद करेगा। काम पे आप पर्सनल ईमेल की वजह से परेशान नहीं होंगे, डिस्टर्ब नहीं होंगे, और छुट्टी पे आपको प्रोफेशनल ईमेल को आंसर नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज यू विल नॉट चेक इन टू दैट अकाउंट। So when you have the choice of making a separate email account. So please make an email account with your name on any other portal like Ymail, Rediff Mail, except for Facebook, anywhere else. And in that, please specify your name. अगर आपका नाम का ईमेल अकाउंट बहुत सारे पोर्टल्स पे सभी ने लिया हुआ है, तो आप उसके बाद डिजिट ऐड कर सकते हैं 1, 2 या 3। अपनी बर्थ डेट मत ऐड कीजिए, अपना ईयर ऑफ बर्थ मत ऐड कीजिए, ये बहुत अनप्रोफेशनल लगता है। जैसे लगता है कितनी बचकानी हरकत है। जीरो या ओ अपने नाम के बाद अपने ईमेल को यूनिक बनाने के लिए, ईमेल एड्रेस को यूनिक बनाने के लिए मत यूज कीजिए, क्योंकि किसी फाउंड स्टाइल में जीरो ओ की तरह लग सकता है और ओ जीरो की तरह लग सकता है। तो कंपनी ने तो आपको ईमेल भेज दिया, अपने हिसाब से अंदाजा लगा के भैया ये जीरो तो ओ ही होगा, और उसके आपके पास ईमेल पहुंची नहीं, वो बाउंस होगी, किसी और गलत ईमेल पे चलेगी, ईमेल एड्रेस पे चलेगी। कंपनी के पास, जिसके पास 100 के काम और हैं, why would they take the pains to find out the correct email address and send it to you? You might just lose the opportunity. आप हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी खो दें इस स्लाइट मिस्टेक की वजह से। ओके, सो नाउ यू नो हाउ टू मेक योर ईमेल अकाउंट। once having done your header, लेट्स कम टू योर मेन बॉडी। मेन बॉडी में सबसे पहली चीज हम जो बात कर रहे हैं वो है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव टैगलाइन है, जैसे कोक की टैगलाइन है ओपन हैप्पीनेस। अब ये मैं कोक ने अंदाजा लगाया है कि लोगों को क्या चाहिए, खुशी चाहिए, और हम बोलते हैं कि कोक पीने से खुशी आएगी। यस, एंड ये एक बहुत ही छोटी और इंटाइसिंग है, और ये कितनी गिविंग लगती है। गिविंग मतलब हम दे रहे हैं, कोक दे रही है ये, कि आप पियो और आपको ये मिलेगा। इसी तरह से आपको भी अपनी ऑब्जेक्टिव बनाना है, एक बहुत ही ये एंटिसिपेट करके, ये सोच के, अंदाजा लगा के कि कंपनी को चाहिए क्या इस पोस्ट पे काम करने वाले से, मैं बताता हूँ कि मैं वही दे रहा हूँ। दिस इज हाउ यू मेक योर ऑब्जेक्टिव। उसके अलावा ये छोटा होना चाहिए, एक पूरा स्टेटमेंट, एक पूरा सेंटेंस हो सकता है, या 1.5 स्टेटमेंट जितना। आपको पूरे रिज्यूमे में यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेक फुल सेंटेंसेस। आप फर्स्ट पर्सन नहीं यूज कर सकते, आई, मी, माई सेल्फ, ये नहीं यूज कर सकते, सिवाय ऑब्जेक्टिव लिखते हुए और डिक्लेरेशन। एंड जब आप सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, आई, मी, माई सेल्फ नहीं लिखेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके सेंटेंसेस पूरे नहीं होंगे, वो आधे अधूरे स्टेटमेंट्स लगेंगे। तो आप स्टेटमेंट्स यूज कर सकते हैं अपने रिज्यूमे में, और वो ऑब्जेक्टिव में भी डाल सकते हैं। लेट्स लुक एट विवेक्स ऑब्जेक्टिव। ही इज रिटन, aim to utilize to its complete potential my unique skill set, thereby contributing to the growth of the organization and achieving personal growth. अब इसने सबसे पहले शुरू में एक बहुत ही बैंग ऑन क्या डाला, यूनिक स्किल सेट। बहुत ही यूनिक है जो मेरे पास स्किल्स हैं। अच्छा, मैं देख रही हूँ और रिज्यूमे, उसमें से मेरे पास सिर्फ ऊपर नाम और ऑब्जेक्टिव पे नजर पड़ती है, इसने बड़ा यूनिकनेस दिखाई है अपनी, साइड में रखो, इसको इंटरव्यू में देखते हैं। एटलीस्ट इंटरव्यू के लिए तो आप सिलेक्ट हो गए। यस, बट ये ऐसे क्लेम्स फालतू में नहीं करने। यू डोंट हैव टू मेक सच टॉल क्लेम्स इन द एयर। You don't have to just claim like that which you cannot prove later. We will see that he has been able to prove. हम लोग सब ऐसे claims नहीं कर पाएंगे। तो यूनिक स्किल सेट की जगह हम ये कह सकते हैं, अगर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन या R&D की जॉब है, तो माई enhanced ability for creativity and innovation to serve the purpose of the organization and learn more in the process. ऐसा करके मैं ऑब्जेक्टिव डाल सकती हूँ। यस, तो कंपनी बोलेगी हाँ हम भी ऐसे क्रिएटिव बंदा कोई ढूंढ रहे हैं, इसको साइड में करो। यस, सो दिस इज हाउ आपकी रिसर्च एंड एनालिसिस आपको स्किल्स हाईलाइट करने में, आपको ऑब्जेक्टिव लिखने में मदद। आपने ऐसे ऑब्जेक्टिव लिखे, ओके, यहाँ पर आप फर्स्ट पर्सन यूज कर सकते। एंड इसने भी यहाँ ध्यान रखा है कि पहले वो ऑर्गेनाइजेशन को क्या देगा और फिर उसको क्या चाहिए।
अगर आप सिर्फ देने की बात करें तो लगेगा कि आप डेफिनेटली झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि कोई भी चैरिटी के लिए, समाज सेवा के लिए काम नहीं करते, पैसे कमाने के लिए या अपने भी किसी निहित स्वार्थ के लिए काम करता है, तो उसको मेंशन करो, गलत बात नहीं है, बट उसको बाद में मेंशन। पहले ये बताओ कि आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो कंपनी को। ओके, यूजुअली क्या होता है बच्चे, आई वांट टू वर्क अंडर एक्सपर्ट्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्रूव माय इंटरपर्सनल और टेक्निकल स्किल्स। आपको तो ये सब मिल गया, हमें क्या मिला? ऐसे ऑब्जेक्टिव वाले रिज्यूमे को डेफिनेटली रिजेक्ट किया जाता है, उनको इंटरव्यू प्रोसेस के लिए नहीं बुलाया जाता। आप प्लीज़ ये बात नोट कीजिए कि जब आपके रिज्यूमेस हम लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं, तो वो शॉर्टलिस्टिंग इज फॉर रिजेक्शन। दिस इज अ रिजेक्शन स्टेज, नॉट अ सिलेक्शन स्टेज। सिलेक्शन स्टेज सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू के टाइम पे आती है। तो अब आपने रिज्यूमे लिखते हुए वो सब चीज़ों का, बारीकियों का ध्यान रखना है, सो दैट योर candidature is not rejected. Okay, selection के लिए we will work on selection when we come to PI. Fine, let's come to next heading, skills and award. Since the educational qualification is going to be same for everybody passing out from your course for campus placement, that is why it has been placed lower. Qualification same होने वाली, वो different नहीं है, boring बात है, उसको नीचे रखो। सबसे ऊपर वो रखो जो आपको उससे अलग करता है, सेपरेट करता है, तो वो है स्किल्स एंड अवार्ड। अब आप ये देखिए, इसने स्किल्स दिखाए अपने, और कोई भी स्किल इसका कोई प्रोफेशनल एक्टिविटी किसी जॉब के थ्रू नहीं है एक्यूमुलेट किए, अपने आप ही एक्स्ट्रा करिकुलर या को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करके अपने कैंडिडेचर में इनकलकेट किए। तो अब आपके पास वो टाइम है कि आप भी अपने ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए प्लीज। Exceptional organizational skills by being a member of organizing committee of various events like APA, NanoSciTech, CHASCON and SciNITE. बहुत सारी एक्टिविटीज में इन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल कमिटी में काम किया, तो ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं। So that shows that he can manage money, he can manage people, resources, work done from many other people, people from outside the organization and create events. Yes, आप देखिए exceptional, ऐसे adjective, ऐसे words use करने हैं जिनसे लगे कि आप बहुत ही active हैं, तत्पर हैं काम करने के लिए. If you will see the list, it is like this. You will give the heading in bold, leave the space in front of it empty. हम ज़्यादातर स्पेस रिज्यूमे में खाली छोड़ते हैं, जिससे कि इंटरव्यूअर अपने एक्सपर्ट कमेंट्स वहीं पे लिखते हैं। जितनी ईज है, जितनी कन्वीनियंस है इंटरव्यूअर के लिए, जितना हल्का फुल्का रिज्यूमे लग रहा है, उतने चांसेस है आपके सिलेक्ट होने के। ठीक है, उसके नीचे बुलेट्स में आपने पॉइंट्स देंगे। ओके, एंड देन प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड गोज ऑन। उन्होंने एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी स्किल्स हाईलाइट करे हैं, तो उसमें से हर एक स्किल अब इन्होंने दिखा दिया कि इनके अंदर 4 तरह के स्किल है, तो ये यूनिक स्किल सेट हो ही गया। किसी के अंदर इतने स्ट्रॉन्ग स्किल्स हैं 4 तरीके के, तो जो इन्होंने शुरू में क्लेम किया था कि मेरे में यूनिक स्किल सेट है, वो तो प्रूव हो गया ट्रू। तो अब तक तो इंटरव्यूअर इनसे खुश है ना? So that is how you are going to make your resume and formulate your objective also. Let's look at the next heading, which is written qualifications. इसको सिर्फ qualifications रहने देंगे हम। अगर हमारे पास besides academic qualification कोई extra qualifications है, जैसे कि certificate course in computer aided designing, certificate course in some language, certificate course in playing some musical instrument, उसके अलावा कोई भी हमने कोर्स किया हुआ है और उसके लिए सर्टिफिकेट है या डिप्लोमा होल्डर हैं हम, तो हम ऊपर हेडिंग सिर्फ क्वालिफिकेशंस, नहीं तो आप एकेडमिक क्वालिफिकेशंस भी दे सकते हैं। अब आप देखेंगे इस लिस्ट में मैंने नीचे ट्रेनिंग सिनॉप्सिस भी डाला, इस वजह से ऊपर क्वालिफिकेशंस ज़्यादा रेलेवेंट है rather than putting academic qualifications at the heading. Again in bullets I am giving the details of my academic qualification. Pursuing chemical engineering from UICET Punjab University Chennai. मैंने कहाँ से क्या पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ वो मेंशन कर। उसके बाद I have mentioned reverse chronological order में 12. Completed class 12 CBSE. CBSE के बाद बोर्ड नहीं लिखना है। CBSE in the year 2010 scored this much marks and this in PCM. We advise you, हम लोग एडवाइज करते हैं आपको कि आप मत लिखिए अपने मार्क्स, उनके डिटेल्स, CGPA मत लिखिए, टेबल में मत डालिए जब तक कंपनी ना कहे, क्योंकि इससे क्या होता है, ये वो डिटेल है जिसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा PI में और आप फट से आंसर दे दें। तो ऐसे क्वेश्चंस आंसर करने, इजी क्वेश्चन आंसर करने PI में इज कंफर्टेबल, मेक्स यू फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, आपकी परफॉर्मेंस PI में बेटर हो जाती है। दैट इज हाउ यू कंट्रोल योर पर्सनल इंटरव्यू थ्रू योर रिज्यूमे, थ्रू सच एग्जांपल्स। और उसके अलावा अगर आप ऐसे डिटेल्स या टेबल में डालेंगे अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मांगी नहीं गई है, आपका रिज्यूमे बड़ा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, वो हम अवॉइड करें।
तीसरी बात, सपोज आपके मार्क्स जैसे इनके हैं, जैसे मेरे भी थे, मैं गई थी तो मुझे बड़े थोक के बाद में मार्क्स लिए हुए। ये इसलिए आया क्योंकि जो इंटरव्यूअर थे उनके मार्क्स उतने अच्छे नहीं थे, तो वो मुझसे पहले ही इरिटेट हो गए। या फिर ऐसे हो सकता है मेरे मार्क्स कम रहे हों सारे टाइम, तो फिर वो मेरी कैपेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क बन जाता है। हो सकता है कई बच्चे वैसे अच्छे हों पर एग्जाम्स में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते, कोई और रीजन रहा हो, ड्यू टू इल हेल्थ, सम ट्रेजेडी इन द फैमिली, किसी और वजह से आपकी परफॉर्मेंस एग्जाम्स में अच्छी नहीं रही हो, पर वो डिटेल पूछने से पहले ही आपके बारे में एक प्रेजुडिस पहले से ही है दैट आप अच्छे परफॉर्मर नहीं रह चुके अकेडमिकली, क्या आप जॉब अच्छा करेंगे? ठीक है। थर्ड केस सिनेरियो ये हो सकता है, कभी आपके अच्छे मार्क्स है, कभी छोटे, कभी अच्छे, कभी कम, तो आपका जो ग्राफ है वो ऊपर नीचे जा रहा है, आप इनकंसिस्टेंट लग रहे हैं, आप कंसिस्टेंट नहीं लग रहे हैं। तो फिर मैं सोचने लगूंगी एज अ कंपनी और एम्प्लॉयर, क्या ये अच्छे रिजल्ट सारे टाइम देने लायक है, या कभी अच्छा कर देता है गलती से, उसके बाद फिर वही नीचे, फिर मुझे इस पे काम करना पड़ेगा, फिर गलती से कोई तुक्के से अच्छा काम कर देगा, अच्छी परफॉर्मेंस हो जाएगी। ये अगेंस्ट आपके एक प्रेजुडिस बन रहा है, चाहे शायद आप रियलिटी में ऐसे हो या ना हो। तो इन तीन वजहों से हम, जब तक मांगा ना गया हो, अपने मार्क्स के डिटेल्स नहीं देंगे प्लीज। ओके, एंड देन द ट्रेनिंग सिनॉप्सिस इज आल्सो इंक्लूडेड। अगर उन्होंने बोला है डिटेल्स ऑफ द ट्रेनिंग सेपरेटली, देन यू विल मेक अ सेपरेट हेडिंग। बिलो क्वालिफिकेशंस आप ट्रेनिंग सिनॉप्सिस लिखेंगे, आप बताएंगे कंप्लीटेड ट्रेनिंग वोकेशनल ट्रेनिंग एट डिपार्टमेंट ऑफ प्रोसेस इंजीनियरिंग टेक्निक केटी इंडिया लिमिटेड नोएडा फ्रॉम दिस मंथ टू दिस मंथ, और 2 पॉइंट्स बता देंगे ट्रेनिंग में आपने क्या किया, अमोनिया के साथ काम करना सिखाया, वटेवर। अदरवाइज अगर ट्रेनिंग सिनॉप्सिस अलग से नहीं मांगा है तो आप क्वालिफिकेशंस के अंडर ही ऐसे एज वन स्टेटमेंट इंक्लूड कर सकते। ओके, let's move on to the next heading in the main body, and that is personal details. Personal details बहुत ही ध्यान से देने चाहिए रिज्यूमे में, सबसे ज़्यादा ध्यान से, क्योंकि एक तो ये लंबा कर देता है आपके रिज्यूमे को, फिर उसके बाद इन डिटेल्स पे हो सकता है आप पे क्वेश्चन करा जाए, बाकी सारा इंटरव्यू अच्छा हो, ये टूवर्ड्स द एंड है, गलती से एंड में कुछ ऐसा ना हो जाए जिसकी वजह से आप रिजेक्ट हो जाए। तो ये डिटेल्स आप बहुत ध्यान से दें। यू कैन इंक्लूड डेट ऑफ बर्थ एज की जगह, एज आपकी चेंज होती रहती है हर एक साल, फिर उसके अंदर आपको ईयर्स एंड मंथ्स वगैरह, सो यू विल नॉट राइट एज, you will write date of birth. And here it is written in the American format. You can even write it in the British format like 22nd August, 1992, या फिर August 22, 1992. But please don't write a mixture of both. दोनों की खिचड़ी पका के मत लिख दीजिए 22 अगस्त 1992, गलत। अगस्त 22 1992, गलत। नहीं, मंथ पूरा लिखेंगे हमेशा, कभी ऑग नहीं लिखेंगे। 1992 लिखेंगे, एपोस्ट्रोफी 92 नहीं लिखेंगे। कहीं पे भी डेट डाल रहे हैं, हमेशा मंथ भी पूरा लिखेंगे स्पेलिंग्स उसकी, और मंथ और ईयर को हम सेपरेट करेंगे एक कॉमा से, जैसे कि यहाँ पे डेट और ईयर को सेपरेट किया गया कॉमा से, वैसे ही अगर मंथ और ईयर एक साथ आ रहे हैं तो आपने उसको कॉमा से सेपरेट करना है। ठीक है, डॉट्स डाल के नहीं लिखेंगे, जैसे कि 22 डॉट 09 डॉट 1992 डॉट, ये गलत है, ये तरीका नहीं है डेट लिखने का, ये ऐसे बच्चे लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट हियर इट इज रिटन फादर्स नेम, आप मदर्स नेम अगर उन्होंने पूछा तो वो भी डाल सकते हैं। मैरिड लोग स्पाउसेस नेम डाल सकते हैं। इसके अंदर प्लीज नोट कीजिए नाम कैसे लिखा है, मिस्टर के बाद डॉट नहीं है, मिसेस के बाद भी डॉट नहीं आएगा। और अगर यूजुअली हम लेडीज को एड्रेस करें जिनका हमें एज या मैरिटल स्टेटस नहीं पता है तो हम मस लिखते हैं। ओके, सो यू कैन राइट एम एस ऑल्सो। बट सपोज इनके फादर का नाम होता श्याम कुमार कांसल एंड ही डिड नॉट राइट कुमार पूरा, वो के ही लिखते, तो यहाँ पे लिखते ये मिस्टर विदाउट द डॉट श्याम, जैसे कि लिखा है के के बाद डॉट फिर बांसर। तो जब हम इनिशियल बनाते हैं तब उसके बाद डॉट लगता है, जैसे कि यू डॉट एस डॉट ए डॉट, वो होता है यूएसए। यूएसए पूरा ऐसा ही नहीं विदाउट डॉट, वो गलत यूसेज है। नाम लिखते हुए ये भी ध्यान रखिए प्लीज, आपने टाइटल्स लाइक इंजीनियर डॉक्टर नहीं डालने। ओके, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या आपके फादर की प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में कोई डिटेल्स नहीं चाहिए। श्री और श्रीमती नहीं यूज करना है, ये हिंदी टाइटल्स है, these are not English titles, so you will not use them here. Okay, next thing that is written here is languages spoken. अब ये बहुत बड़ी बात है, हर एक लैंग्वेज को जानने के लिए 4 तरह के स्किल्स चाहिए थे, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग।
और यहाँ पे हमने सिर्फ एक स्किल की बात करी है, स्पोकन। अगर मैं लैंग्वेजेस नोन लिखती हूँ और मैं लिखती हूँ 2 या 3 लैंग्वेजेस का नाम, तो मुझे एज फुट नोट टू दोज नेम्स, छोटे फॉन्ट में उन नामों के नीचे मुझे LSRW लिखना पड़ेगा कि कौन कौन, शायद मैं LSR ही लिख सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल पंजाबी, इन माई केस मैं पंजाबी लिख दूंगी, लैंग्वेजेस नोन लिखूंगी अपनी लिस्ट, इंग्लिश, हिंदी, फिर पंजाबी। तो मैं लिसनिंग, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग कर सकती हूँ पंजाबी में, तो LSR ही लिखूंगी। राइटिंग नहीं कर सकती मैं पंजाबी में। ऐसे डिटेल्स इंक्लूड करने से मेरा एक तो रिज्यूमे लंबा हो रहा है, उसमें कंफ्यूजन भी क्रिएट हो रही है। यस, और लैंग्वेजेस स्पोकन अगर मैं लिखती हूँ तो उसमें तो मैं वैसे ही सीधे लिख सकती हूँ पंजाबी, उसके अंदर कई लैंग्वेजेस ऐसी भी आ जाएंगी जो कि मैं लिख नहीं सकती। फिर वो लैंग्वेजेस, जैसे पंजाबी अगर मैं वैसे ही लिखूँ LSRW के बिना लैंग्वेजेस नोन में, तो मैं नहीं डाल सकती, वो गलत है। अगर मैं सोचूं चलो मैम नीचे से LSRW हटा देते हैं, लैंग्वेज डाल देते हैं, तो फिर आप पंजाबी तो उस लिस्ट में डाल ही नहीं सकते अगर आपने आगे लैंग्वेजेस नोन लिखा है। फिर मेरी एक लैंग्वेज कम हो गई। फिर अगर मैं सोनालिका ट्रैक्टर्स के लिए अप्लाई कर रही हूँ और मुझे पंजाबी आती है तो ऑब्वियसली मेरे फेवर में। रिलायंस के लिए अप्लाई कर रही हूँ, मुझे गुजराती आती है, मेरे फेवर में है। यस, सो दीज आर द थिंग्स जो मेरी रिसर्च एंड एनालिसिस से मुझे पता चलेगा। एंड वी एडवाइज यू टू पुट लैंग्वेजेस स्पोकन, वो ज़्यादा होती हैं, एंड उनको 1 या 2 लैंग्वेजेस जितनी भी आप उनको कॉमा से और एंड से सेपरेट करके लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट इज इंटरेस्ट। इसको कभी भी आपने पास टाइम एक्टिविटीज़ या हॉबी का टाइटल नहीं लेना। आप लोग के पास इतना फ्री टाइम नहीं है बिसाइड्स स्टडिंग है, बिसाइड्स वर्किंग ऑन योरसेल्फ, कि आप फ्री टाइम भी है आपके पास जिसमें आप टाइम बिताने के लिए, टाइम पास करने के लिए कुछ काम करते हैं, ढूंढते हैं भैया कुछ काम करें, इतना टाइम है आपके पास। या आपकी हॉबी है या आपका शौक है, शौक बहुत ही फिकल या कैजुअल एटीट्यूड दिखा रहा है, ये आपके इंटरेस्ट हैं। ये बिसाइड्स दीज अदर एक्टिविटीज, ये एक्टिविटीज वो हैं जो आपके दिल के करीब है और आप टाइम निकालते हैं इनको करने के। तो अब देखिए इसमें आपके बारे में, टाइम मैनेजमेंट के बारे में कितनी अच्छी बात पता चलती है। पता चलता है कि आपकी पर्सनालिटी में यू आर ट्राइंग टू इनकलकेट नॉट ओनली टेक्निकल स्किल्स, अदर सोशल स्किल्स, बट ऑल्सो दीज काइंड ऑफ क्रिएटिव स्किल्स। तो आपने देखना है आपका पूरा रिज्यूमे कैसे दिख रहा है। जैसे कि विवेक का रिज्यूमे कैसे दिख रहा था, बहुत ही टेक्निकल। उसकी जो स्किल्स थे, चैसकॉन में पेपर प्रेजेंटेशन में भी किसी साइंस उसमें किया, मतलब सारा ही टेक्निकली रिलेटेड है। एक स्पोर्ट उसने खेला था कॉर्फ बॉल, पता नहीं कौन सा स्पोर्ट है, मैंने तो पहली बार सुना था जब उसने मुझे बताया। और उसमें अंधों का काना राजा होके कोई मिल भी गया अवार्ड तो क्या। इसलिए आप अपने रिज्यूमे में अपनी पर्सनालिटी, बहुमुखी प्रतिभा के धनी है, वेल डेवलप पर्सनालिटी है, ऐसे दिखा सकते हैं अगर आप ये इंटरेस्ट वाला कॉलम ठीक से भरें। पर इसमें ऐसे ही नहीं कि मैं अच्छा दिखूं या मेरा कैंडिडेचर अच्छा दिखे तो मैं इसमें ये 2 एक्टिविटीज डाल देता हूँ, यही 2 कमी लग रही है, मेरे टेक्निकल स्किल्स तो अच्छे लग रहे हैं, क्रिएटिव स्किल्स ये 2 डाल दो। नो, अगर आप कंप्यूटर को यूज़ करके आपने पिछले 3-4 सालों में अपने एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का मैगजीन का कवर डिज़ाइन किया है, तो आप कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग यूज़ कर सकते हैं। वर्किंग विद फोटोशॉप यूज़ कर सकते हैं एज अ स्किल हियर, एज एन इंटरेस्ट हियर। यू, अगर आपकी फोटोग्राफ्स सारे इवेंट्स में आपने फोटोग्राफ्स खींची हैं, जो भी आपके इंस्टीट्यूशन में इवेंट्स हुए हैं उसमें आपने फोटोग्राफ खींची है, बाहर से कोई फोटोग्राफर नहीं लाया गया है, और वो ही सारे पब्लिकेशंस में, सारी वेबसाइट में, सर्कुलर्स में वो ही फोटोग्राफ्स लगी हैं, तो आप फोटोग्राफी यहाँ डाल सकते हैं। क्योंकि ये वो इंटरेस्ट है जिसके लिए आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, जिसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, पर कला तो है, हुनर तो है, तो आप वो यहाँ डाल सकते हैं। इस वजह से आपकी पर्सनालिटी बहुत डेवलप लगती है। आप इसमें जो चीज़ें आप ऊपर नहीं डाल पाए ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस, बट दे आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी, वो आप यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं। और ये वो चीज़ें होंगी जिनके बारे में आपसे अगर पीआई में क्वेश्चन पूछा जाए, आप बहुत कंफर्टेबली और कॉन्फिडेंटली आंसर कर सकते, झूठ ना बोलो। ओके, सो आपसे कुछ भी डिटेल कभी पूछ ले, सपोज आपने फोटोग्राफी रखी है, पूछिए, तो आपसे पूछेंगे कि भैया रिको के कैमरे में और नॉर्मल कैनन के कैमरे में क्या फ़र्क है, डीएसआर कैमरा कैसा होता है, ट्राइपॉड स्टैंड कैसा होता है, कौन सा लेंस यूज़ करते हो, कितना जूम इन करते हो, लाइटिंग कैसी होनी चाहिए, विच आर द वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ फोटोग्राफी, कुछ पता है 80% 3 आवर्स वाला जो प्रिंसिपल है फोटोग्राफी का, कुछ बता सकते हो उसके बारे में। ऐसे क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। अगर आपको लिख रहे हैं, आपने खूब फोटोग्राफी करी हुई है, थोड़ा सा पढ़ के चले जाइए जो आपने इंटरेस्ट मेंशन करे उनके बारे में। ओके, नाउ हियर इज मेंशन क्रिकेट, क्योंकि उसने कॉर्फ बॉल बताया था तो उसने वो तो किसी को पता ही नहीं था क्या था, तो बोलता मैं नॉर्मल दिखने के लिए क्रिकेट भी डाल देता हूँ, एंड देन आई प्ले गली क्रिकेट। So he says that he is ready to perform, उनके टीम स्किल्स,
उनके इंटरपर्सनल स्किल्स एक कैजुअल एनवायरनमेंट में भी बहुत अच्छे हैं, वो ये दिखाना चाहते हैं। ये नहीं कि जब वो किसी मेडल या ट्रॉफी के लिए काम कर रहे हैं तभी वो दूसरों के साथ अच्छे से बिहेव करते हैं, बर्ताव करते हैं, नहीं। चाहे वो अपने कैजुअल अपने प्लेजर के लिए भी खेल रहे हैं कोई गेम, तब भी वो उस स्टेज उस सिचुएशन में भी दूसरों के साथ अच्छे से बिहेव करते हैं। तभी वो गली क्रिकेट खेलते हैं, किसी भी मैदान में जाके लोग बच्चों के साथ क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और उसके लिए टाइम निकालते हैं। Yes, and second thing that he mentioned here was collecting currencies of different countries. इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन किया था मैंने उन्हें बोला था इसकी जरूरत नहीं है, आप यहाँ मत लिखिए। एक तो ये बहुत लंबा स्टेटमेंट है, लंबा और आपका रिज्यूमे, फिर ये क्या बड़ी बात है, मतलब मुझे तो कुछ इतना अच्छा नहीं लगा, इसके अलावा आप कुछ और डाल दीजिए, या मत ही डालिए। बोलते मैम इसके पीछे 2-3 रीजन है। मैं कहा मुझे एक बताओ कितनी कंट्रीज की करेंसीज है? बोलता 12। मैं कहा इतना टाइम है तुम्हारे पास, इतना पैसा है तुम्हारे पास जो तुम इतनी कंट्रीज में गए हो? अगर इतना पैसा है ही तो जॉब क्यों कर रहे हो? अपना ही काम कर लो शुरू। मैं अगर तुम्हें अपने जॉब अपनी कंपनी में जॉब देना है मैं तो यही दिया बोलूँगी। बोलते पर मैम मैं वहाँ खुद नहीं गया। तो बहुत बड़ी बात है, मैंने बोला फिर उठाओ मार्केट से कुछ भी खरीदो और बोल दो ये मेरी शौक है, कल को मैं भी शौक शुरू कर लेती हूँ स्टैम्प्स कलेक्ट करने का। मैं कहा दिस शुड नॉट बी इंक्लूडेड, मैं बार बार इंसिस्ट करी थी। तो बोलता नो मैम गिव मी अ पेशेंट हियरिंग। मैं मानता हूँ कि मैं इंडिया से बाहर सिर्फ नेपाल गया हूँ, पर ये करेंसीज जो 12 कंट्रीज की मेरे पास हैं ये एक्चुअली उन्हीं कंट्रीज से आई हुई है। मैं कहा वेरी गुड, फैमिली गई होगी। बोलता नो मैम, not only my family went but also my friends but also strangers who went and who got this for me. मैं कहा वेरी गुड, वो आके आपको लाके देंगे और मैं मान लूँ। बोलता नो आई एम सो पैशनेट अबाउट कलेक्टिंग करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज कि मैं हेजिटेट नहीं करता हूँ, घबराता नहीं हूँ। जैसे ही मुझे पता लगे कि कोई बाहर घूमने जा रहा है और उस कंट्री की करेंसी मेरे पास नहीं है, मैं उनके पास झट से चले जाता हूँ, बोल देता हूँ प्लीज वहां से मेरे लिए करेंसी नोट और कॉइन ले आना, मैं अपनी कलेक्शन में रखूँ। मैं कहा अच्छा भाई, अभी आपने रख लिया, ये आपका शौक है, इससे फ़ायदा क्या हो रहा है? बोलते इससे सबसे बड़ा फ़ायदा मैम ये हो रहा है कि जब भी मैं घबरा जाता हूँ या मुझे होपलेसनेस घेर लेती है तब मैं अपनी कलेक्शन को देखता हूँ, बोलता हूँ कि इन्हीं सभी कंट्रीज़ में मैंने खुद अपने मेहनत से कमाए हुए पैसों से घूमने जाना है, काम करने जाना है। दिस इज़ हाउ आई मोटिवेट माई सेल्फ। तो इस छोटी सी बात से जो जो मैं उसको बार बार मना कर रही थी कि मत लिखिए, उससे कितनी बड़ी बात उनकी पर्सनालिटी के बारे में आई। एंड अगर वो पीआई उनके पीआई किसी भी पीआई के सिचुएशन में उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया, 2 पीआई में ये क्वेश्चन पूछा गया था जो मैंने रेज किए थे उनके साथ, एंड ही फेयर्ड वेरी वेल, he fared very well in those PIs and इनमें से एक पीआई में वो एक कंपनी के साथ आज काम भी कर रहे हैं। सो इन छोटे छोटे डिटेल्स से आप ये देखिए, आप अपना पर्सनल इंटरव्यू के क्वेश्चंस कंट्रोल कर रहे हैं, आप अपने बारे में एक इमेज क्रिएट कर रहे हैं इंटरव्यूअर के माइंड में हु डज नॉट नो यू, जो आपकी पिक्चर भी नहीं देखी हुई है क्योंकि हमने वहाँ पे फोटोग्राफ नहीं लगाई है। यस, तो दैट इज हाउ पावरफुल अ रिज्यूमे इज। ओके, एक या दो इंटरेस्ट से ज़्यादा हम मेंशन नहीं करेंगे। उसके बाद आपने प्लीज़ डिटेल्स ऑफ सेक्स, नेशनैलिटी, रिलीजन ये सब नहीं देना। These are not required at all under the heading personal details. These are not required. Okay, you may include all of these 4 details or you can just include date of birth, father's name and languages. That is it. Okay, below that comes the disclaimer. Disclaimer क्या होता है? एक सर्टिफिकेशन है, आपने इतना कुछ लिखा है अपने बारे में, क्या ये सब सही है? Yes. So this is that statement. The information furnished above is true and correct to the best of my knowledge. मैंने आपको शुरू में बताया था जब हम ऑब्जेक्टिव लिखते हैं या फिर जब हम डिस्क्लेमर लिखते हैं, बस वहीं पे मैं पूरे रिज्यूमे में फर्स्ट पर्सन यूज कर सकती हूँ, अदरवाइज आई कैन नॉट यूज द फर्स्ट पर्सन एंड इट हैज बीन यूज्ड हियर इन डिस्क्लेमर। एक डिस्क्लेमर आ गया, एक आपकी तरफ से सर्टिफिकेशन आ गया, आपने उसके नीचे साइन करना है। सो इफ यू सी on the right hand side there's an empty space, below it within brackets is his name, the name is not in bold, यहाँ पे आप अपने signatures डालेंगे। और एकदम दूसरी तरफ on the opposite side in the same space on the page there is date and place, ये भी खाली छोड़ी जाएंगे, ये आप पेन से भरेंगे उस दिन की डेट जिस दिन आप इंटरव्यू के लिए अपियर हो रहे हैं और उस जगह का नाम जहाँ से आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। Suppose from Chandigarh I'm going to Delhi for an interview, so I'll put up the place as Chandigarh, not Delhi. Okay, and below that I have left the page empty, मैंने footer की लाइन ड्रॉ करी है और वो खाली छोड़ दी। पूरा रिज्यूमे खाली खाली लगना चाहिए मिनिमम डिटेल्स के साथ, जिससे कि इंटरव्यूअर को सबसे ज़्यादा जगह मिले अपने कमेंट्स लिखने, वो इधर उधर पेज ना ढूंढे, उसके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाए आपको सिलेक्ट करना
और आपको रिजेक्ट करना बहुत मुश्किल। अगर आपका रिज्यूमे दूसरी शीट पे भी जाता है, आपका ऊपर दूसरी शीट में हेडर खाली जाएगा। प्लीज डू नॉट रिपीट योर नेम या कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देयर, वो खाली रहने दीजिए। लाइन ड्रॉ कीजिए पर वो खाली रहने दीजिए। उसके नीचे जो रह गई है हेडिंग्स वो इंक्लूड कीजिए। ओके, एंड फिर उसके बाद बाकी सारी शीट खाली रहेगी, क्योंकि 1/4 शीट ही भरेगी, बाकी सारी शीट खाली रहेगी। फिर नीचे आपने फिर फुटर की लाइन दी और वो फिर खाली रहेगी। अगर आपका रिज्यूमे एक पेज से ज़्यादा जाता है, तब भी आपने ना फर्स्ट पेज पे ना ही सेकंड पेज पे नंबरिंग देनी है, कहीं पे भी वन, बीच में, साइड में, सेंटर में, ना ही आपने पीटीओ या कुछ लिखना है। उसको खाली रहने दीजिए। ओके, ये हो गया रिज्यूमे की फॉर्मेटिंग और कंटेंट। इसके अलावा मैं कुछ टिप्स देना चाहती हूँ जो आप एक रिज्यूमे में लिखें। पहली चीज़, सबसे पहली चीज़, रिज्यूमे छोटा हो, उसमें आपने सिर्फ रेलिवेंट डिटेल्स डालनी। रेलेवेंस आपको पता चलेगा अकॉर्डिंग टू जॉब प्रोफाइल एंड अकॉर्डिंग टू द कंपनीज रिक्वायरमेंट। फाइंड इट आउट योरसेल्फ, डू नॉट हेजिटेट। घबराएं मत कि उनकी वेबसाइट पे फ़ोन नंबर दिया है, क्या मैं उस पर कॉल कर सकता हूँ या नहीं कर सकती। कॉल करो, ज़्यादा ज़्यादा मना कर देंगे, दे विल नॉट डू एनीथिंग एल्स। रादर उनको पता चल जाएगा कि हाँ, हम कैंपस प्लेसमेंट के लिए इस इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, वहाँ पे इस नाम का एक बच्चा है जो हमारे बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उसका तो ज़रूर करना है भाई इंटरव्यू, वो क्यों हमारे साथ काम करना चाहिए। यस, एटलीस्ट आप इंटरव्यू स्टेज तक तो पहुंच गए, और इससे आपकी तैयारी भी अच्छी है। आपको बात करने से पता चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, कैसे लोग हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट चीज, आपने अपने रिज्यूमे में एक्शन ओरिएंटेड वर्ड्स डालने हैं। हाईली मोटिवेटेड टू वर्क, और highly motivated to work in team environments and performing well by having won korfball competition at the national level in this year. तो इसमें पता चल गया। मैं जब आपके बारे में सोच रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है हाँ, कोई एकदम तैयार है, काम करना चाहता है और लोगों के साथ टीम में काम करना चाहता है। आपके स्टेज पे तो टीम लीडर्स ही चाहिए हमें, टीम बिल्डर्स ही चाहिए हमें, लीडर्स से ज़्यादा। So these are the kind of words that you should use in your resume. Never use the first person in the resume. वो आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव में यूज कर सकते हैं या फिर डिस्क्लेमर में यूज कर सकते हैं। सेकेंड चीज, रेज्यूमे में खाली खाली जगह ज़्यादा होनी चाहिए जिससे वो लाइट लगे। एक शीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कभी भी अपने रेज्यूमे में फोटोग्राफ नहीं लगाएंगे। पीआई के टाइम पे अगर वो फोटोग्राफ मांगते हैं तो आप उसको पेपर क्लिप से अटैच करेंगे या फिर दो स्टेपल पिन से, एक ऊपर सेंटर में और एक नीचे सेंटर में, दैट इज इट। और वो आप अपने साथ पेपर क्लिप्स जो है वो आप अपने साथ कैरी करेंगे अपने फोल्डर में। एंड दोज पेपर क्लिप्स शुड बी सिल्वर इन कलर, वो फ्लोरेसेंट ग्रीन प्लास्टिक वगैरह वाले नहीं चाहिए। मैं पेपर क्लिप्स इसलिए कह रही हूँ कि जस्ट इन केस वो आपके रिज्यूमे में से आपकी फोटोग्राफ हटाते भी हैं, वैसे ही सिंगल पेज डॉक्यूमेंट है, वो फट गया तो वेस्ट पेपर लगने लगेगा। और स्टेपलर से इसलिए कि अब वो कहते नहीं क्लिप की जगह स्टेपल कर दो, अच्छे से अटैच कर दो, तो स्टेपल करेंगे, चिपकाएंगे नहीं। चिपकाने से वो डेफिनेटली उतना एरिया तो सारा फट जाएगा। स्टेपल पिन यू कैन स्टिल रिमूव with the provision provided on the other side of the stapler to take out the pins, and then also your whole resume will be intact, क्योंकि सिंगल पेज डॉक्यूमेंट है, उसमें कोई ऐसे मार्जिन वगैरह बॉर्डर वगैरह नहीं बना होता है, नहीं बनाना है जिससे कि हम स्पेस वेस्ट ना करें। तो वो वैसे ही ऐसे लगेगा कोई ऐसी शीट ऑफ पेपर है, इसलिए वो फटा हुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कभी भी डैमेज नहीं होना। यू आर नॉट गोइंग टू कीप एक्स्ट्रा कॉपीज ऑफ योर रिज्यूमे साइन, अनसाइंड कॉपीज आप रखेंगे। आपका रिज्यूमे हर एक जॉब प्रोफाइल के हिसाब से चेंज होगा। यू कैन कस्टमाइज योर रिज्यूमे अकॉर्डिंग टू ईच जॉब प्रोफाइल दैट यू आर अपीयरिंग। Any person can have n number of resumes. Learn how to reflect transferable skills in your resume. Transferable skills अपने resume में reflect करना सीख लीजिए प्लीज। अगर आप resume बना रहे हैं इस केस में कि आपके पास suppose besides studying you are working also, and for any job, that part-time job even, which for which you work for 6 months or more, you can get an experience certificate. उनके लेटर हेड पे आप एक लेटर ले सकते हैं that such and such person has worked in this capacity with our organization from this month to this year. Okay, and to end it all, to sum it up all, your resume is your personal advertisement. You should be very careful about the information that you give out in the resume, and you should be very honest also about it. So if your candidature does not lack that kind of heavy information, that kind of impressive information, आप प्लीज उस पे आज से काम करना शुरू कर दीजिए। And
Sir has provided me the facility provision that you can write your resumes and submit it to your respective coordinators, and then those coordinators can get in touch with Singla sir regarding the approval or whatever analysis of your resume. Fine. I'd like to end the session here. If there are any questions, most welcome. Anybody with any questions? Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Ma'am, it was so nice, really. बच्चों ने काफी interest लिया final year खासकर, Yes, and they were ma'am. very much amazed, and you had been very nice in Hindi probably. You had explained very nicely, and thanks a lot. Thank Thanks a you. lot, ma'am. Thank you. Any comments or any questions from MM College of Pharmacy? I think some boys are raising hand. Students. And they are supposed to submit one resume. Hey, they will submit to the coordinator. Any questions, please? You are supposed to submit, okay? Hello. No, no, also. MM College of Pharmacy, kindly address the mic. You will be having your resume. Okay. Where in from your department, you have to go to the department now. Obviously, you can have it out. Some other thing is Okay, friends, if there are no questions from Pharmacy College, we'll close this session. I would like to extend my heartiest sense of gratitude to Madam Sudhiti Jindal, who has spared a very valuable time and shared with us her experiences and her expertise in the area of resume writing. Normally, we think that resume writing is a very easy thing. Within an hour or half an hour, we just write down what I am about. About that, I write down anything. But you see how important and how much effort it requires to write down a good resume. And I'm sure the students will be writing the resume. And as announced by Madam Sudhiti Jindal and I, as I announced earlier also, you may encourage your students to write resume and send those to us. We will send our comments if there are any comments, or we will try to make them some corrections in them, improve on their resume, and then send back to you. Well, friends, this is the end of the first session. Before lunch session, we'll be starting with the post lunch session at 2 o'clock sharp. I request all the centers